Hello and welcome to my channel English with Pooja. Learn English, love English. So students, as you know that I'm gonna give you complete course of RPSC and NET also on this YouTube channel of mine. We have started from Plateau. I have completed Plateau in two parts and all the important points are completed. Now moving on to the next important topic is Aristotle. So without further ado, let us jump into the video. Okay, so today we are going to do Aristotle. It is very important from the viewpoint of RPSC as well as NET. Okay, so Aristotle was pupil of Plato. Okay, he was disciple of Plato. When Aristotle was 17 years old, he was admitted to Plato's academy. Okay, and what is meaning of Aristotle? Meaning of Aristotle is best purpose. And he was born in 384 BC. He was born at Stagira in Chalcidice, and he died in 322 BC. And he was son of Nicomachus. His father's name was Nicomachus, who was a court physician, and he was friend of King of Macedonia. So his boyhood was actually spent at the court of Pella, and as I told you that at the age of 17 he was admitted to Plato's academy at Athens. He was also a Greek, and he remained nearly there for 20 years till the death of his master, that is Plato, in 347 BC. The successor of Plato was Speusippus, who represented a tendency of Platonism. And then what happened after death of Plato? Aristotle and his friend Xenocrates, they retired to Assos in Mysia. Well, these points are not that important, which I'm telling you. Whatever is written on the board, that is more important, but I'm just telling you the story of Aristotle. Then you can just learn that Aristotle was actually appointed as a tutor for Alexander, and he taught Alexander nearly for 6 years. After the death of Philip in 335 BC, Aristotle returned to Athens where he founded his famous academy, or you can say school, that was Lyceum. This is important. Which academy Aristotle found? It is Lyceum. Okay, and Theophrastus was Aristotle's pupil, and Aristotle was pupil of Plato. So, I told you that he died in 322 BC. Okay, so now moving on to his very famous work, that was Poetics, which is still read today. It has got 26 chapters. This is very important point, and the next point important is whether it is complete or incomplete. So it is an incomplete work. It is called a fragmentary work of criticism. So it deals with tragedy, कॉमेडी एंड एपिक पोइट्री. ये जो वर्क है इसमें ये किस किस चीज़ में डील करता है ये आपको मालूम होना चाहिए. ट्रेजेडी, कॉमेडी एंड एपिक पोइट्री. 26 चैप्टर्स हैं इसके अंदर. तो इसमें इसको कहते हैं कि जो ये डिटेल में लिखना चाहता था उसका काइंड ऑफ रफ स्केच था ये. तो ये भी कहते हैं कि शायद पॉसिबल था कि इसका एक सेकेंड पार्ट है जो कि शायद गुम हो गया, विच वॉज लॉस्ट. ओके, सो वॉट एवर लाइक वी गॉट, इट वॉज इनकम्प्लीट एंड फ्रेगमेंट्री. सो ये ना ही तो केवल फर्स्ट फिलोसफिकल डिस्कशन था लिटरेचर का. दिस वाज फर्स्ट फिलोसफिकल डिस्कशन ऑफ लिटरेचर, रादर इट वाज द फाउंडेशन ऑफ ऑल सब्सिक्वेंट क्रिटिसिज्म. जितने भी बाद में क्रिटिसिज्म आए हैं तो उन सब की ये फाउंडेशन थी पोइटिक्स. और ये लिखा गया था अराउंड 330 BC में. सारी जितनी भी फंडामेंटल प्रॉब्लम्स हैं इसके अंदर, इनको कैसे डिड्यूस किया गया इंडक्टिवली. एज ऑल ऑफ यू नो कि दो मेथड होते हैं, इंडक्टिव मेथड एंड डिडक्टिव मेथड. तो इसके अंदर इन्होंने सारे जो मेथड्स हैं वो इंडक्टिव मेथड यूज़ किए थे, और प्लेटो सारे मेथड्स में डिडक्शन यूज़ करते थे. इन्होंने इंडक्शन यूज़ किया है एंड प्लेटो ही यूज्ड टू गो फॉर डिडक्टिव मेथड. एंड प्लेटो पोइट्री के बारे में कहते थे कि पोइट्री फॉल्स है, अनरियल है, हार्मफुल है, जैसा कि हमने स्टडी किया था लास्ट वीडियो के अंदर. और उल्टा एरिस्टोटल ऐसा नहीं मानते थे. तो
इन्होंने रेट्रिक भी लिखी थी बुक, एक द फ्रेगमेंट्री डायलॉग लिखी थी कंसर्निंग द पोइट्स, एंड एरिस्टोटल वाज वेरी मच इंटरेस्टेड इन होमर. तो this is very important. Aristotle, so continuing Aristotle, the first point, like the next point, not the first point, next point that of poetics is it is fragmentary. Incomplete है ये, fragmentary है, complete नहीं है, एंड इट डील्स विद ट्रेजेडी, कॉमेडी एंड एपिक पोइट्री. और इसके अंदर इसने एरिस्टोटल ने ट्रेजेडी, कॉमेडी और एपिक पोइट्री के बारे में लिखा है. सबसे ज़्यादा इसने ट्रेजेडी पे फोकस किया है, इतना फोकस कहीं पे भी नहीं किया. और ये बुक देखी जाती है एज अ रिप्लाई टू प्लेटोज रिपब्लिक. प्लेटो ने रिपब्लिक में लिखा है कि जो पोइट्री है वो फॉल्स है, वो अनरियल है, हार्मफुल है, और उसको पोइट्स को आइडियल वर्ल्ड से बैनिश किया जाना चाहिए, और पोइट्री किसी का भी अच्छा नहीं करती. तो उसका रिप्लाई देने के लिए ये पोइटिक्स लिखी गई है. बट पोइटिक्स में नो वेयर एरिस्टोटल मैंशनड अबाउट प्लेटो, कहीं पे भी प्लेटो का नाम मेंशन नहीं किया है, पर उसने उसको रिप्लाई किया है पॉजिटिव वे में कि पोइट्री बहुत ही अच्छी है. वो हम आगे देखेंगे. और एक्सटैंक टाइटल्स ऑफ हिज लिटरेरी वर्क्स, जो भी बचे खुचे जो वर्क्स जो नोट्स फॉर्म में और जैसे भी मिले हैं, तो उसमें से एक रेट्रिक है, एक फ्रेगमेंट्री डायलॉग कंसर्निंग द पोएट्स है. तो ये भी इसके वर्क्स हैं. इनमें से भी हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करेंगे. और एरिस्टोटल बहुत ही वेल रेड पर्सन था, और ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं था जो इसने टच नहीं किया हो. मेटाफिज़िक्स, बायोलॉजी, फिज़िक्स, ज्योग्राफी, और मतलब सारे सब्जेक्ट्स में ये वेल रेड था. सो ही वॉज अ वेरी वेरी इंटेलिजेंट पर्सन. Coming on to theory of imitation or theory of mimesis. So first of all, this thing is important that Aristotle borrowed this term imitation from Plato Republic. प्लेटो ने जो बुक लिखी थी रिपब्लिक, उसके अंदर उसने इमिटेशन को मेंशन किया था कि जितने भी आर्टिस्ट हैं, जो पोएट्स हैं, वो सब इमिटेट करते हैं, कॉपी करते हैं. तो ये जो टर्म थी एरिस्टोटल बोरोड फ्रॉम प्लेटो, बट ही गेव अ न्यूअर कंप्लीट न्यू सेंस टू इट. बिल्कुल इसकी सेंस इसने चेंज कर दी एरिस्टोटल ने. एरिस्टोटल कॉल्ड इट एज एस्थेटिक फैकल्टी. एंड व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ एस्थेटिक फैकल्टी, इसको समझने की ज़रूरत है, सिर्फ इसका क्रैमिंग नहीं करना है आपको. ये क्वेश्चन भी आया था आरपीएससी के अंदर कि इमिटेशन को क्या माना गया है, क्रिएटिव फैकल्टी, और दो ऑप्शंस और थे, तो आंसर क्रिएटिव फैकल्टी था इसमें. तो आंसर आपको वर्ड को एस्थेटिक की जगह क्रिएटिव भी दिया जा सकता है. तो एस्थेटिक फैकल्टी कैसे बोला, इमिटेशन को प्लेटो ने सिर्फ कॉपी या नकल करना माना है. कि उसने पेंटिंग का एग्जांपल दिया है कि कोई चीज़ बनी हुई है, आप उसको देख के आर्टिस्ट उसको पेंट कर रहा है, तो वो उसको जस्ट कॉपी कर रहा है. तो पहले पहले तो वो जो चीज़ है वो ऑलरेडी एक इमिटेशन है, और फिर आप इमिटेशन को ही दोबारा इमिटेशन कर रहे हो. तो प्लेटो कहते थे कि 2 बार उसको इमिटेशन से हम रिमूव कर देते हैं रियलिटी को. ठीक है. और इमिटेशन, और एरिस्टोटल क्या कहते हैं कि इमिटेशन सिर्फ कॉपी करना नहीं है, उसको सिर्फ कॉपी करना नहीं मानते. वो ये कहते हैं कि एक ऑब्जेक्ट की रिप्रेजेंटेशन है, हम ट्रू कॉपी नहीं बनाते हैं, पर इसका मतलब क्या, आर्टिस्ट नेचर को इमिटेट करता है, और ऐसा करने में वो एक इमेजिनेटिव रिकंस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ करता है. जो चीज़ उसकी मेंटल सरफेस पे जो इम्प्रेशंस बनते हैं, उनको वो इमिटेट करके बनाता है. वो एक रियलिटी को कॉपी करना नहीं कहेंगे, उसको कहेंगे सेंसिबल रियलिटी. तो जितनी भी सारी पोइट्री हैं उसको एरिस्टोटल बोलते हैं, वो सभी इमिटेशन है, चाहे वो म्यूज़िक है, चाहे डांसिंग है, चाहे प्लास्टिक है, चाहे पेंटिंग, प्लास्टिक आर्ट्स है, पेंटिंग है. तो ये सब चीज़ें इमिटेशन ही कहलाती हैं. बट उनको सिर्फ और सिर्फ कॉपी करना नहीं कहेंगे, उनको कहेंगे इमेजिनेटिव रिकंस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ. तो जहाँ पे रिकंस्ट्रक्शन वर्ड आ गया, तो मतलब आप कुछ क्रिएट कर रहे हैं, आप सिर्फ कॉपी नहीं कर रहे, यू आर क्रिएटिंग समथिंग. इसलिए इसको क्रिएटिव फैकल्टी या फिर एस्थेटिक फैकल्टी एरिस्टोटल ने कहा है, एंड दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और एक और इसको जो प्लेटोनिक थ्योरी थी इमिटेशन की, इसको और ब्रॉडन करके ये बोलते हैं कि अगर पोएट्स को या आर्टिस्ट को कोई अक्यूज़ करे, कोई आरोप लगाए कि आप झूठे हो या आप झूठी चीज़ें बनाते हो, ऐसा तो चीज़ है ही नहीं,
तो पोएट कह सकता है कि ही इज़ इमिटेटिंग थिंग्स एज दे आर, मतलब जैसी चीज़ें हैं प्रेजेंट, एज दे आर मतलब जो चीज़ सामने है वो कर रहा है, उसको इमिटेट कर रहा है। थिंग्स एज दे वर, जैसी चीज़ें थी उनको कर रहा है। और एज दे ऑट टू बी, और जैसी होनी चाहिए। तो पोएट यानी इसलिए सुपीरियर भी बोला है एरिस्टोटल ने कि जो चीज़ नहीं भी है और एक्चुअल में उसको क्या होना चाहिए, आइडियल चीज़ क्या होनी चाहिए, उसको भी पोएट कर सकता है, जबकि नॉर्मली ये पॉसिबल नहीं होता। तो वो प्रेजेंट, पास्ट और आइडियल थिंग इमिटेट करता है, एंड दैट इज़ वेरी वेरी गुड थिंग फॉर अ पोएट, फॉर एन आर्टिस्ट। अब नेचर ऑफ इमिटेशन की बात करें तो एरिस्टोटल ने कहा है कि सारा आर्ट जो है, ऑल आर्ट इज़ इमिटेशन, बी इट म्यूज़िक, पोइट्री, डांस और पॉटरी और कुछ भी, पेंटिंग, सभी ये क्या है, सभी ये इमिटेशन के अंडर ही आता है। तो नाउ ही डिस्क्राइब्स कि नेचर ऑफ इमिटेशन क्या है, उसमें उसने 3 एस्पेक्ट्स दिए हैं, या 3 में क्लासीफाई किया है। द फर्स्ट वन इज़ मॉडल ऑफ इमिटेशन, सेकेंड इज मीन्स और मीडियम ऑफ इमिटेशन, थर्ड इज मैनर और मोड ऑफ इमिटेशन। अब क्या है, होती तो सारी इमिटेशन है पर सारी एक ही तरीके से तो नहीं हो सकती। अब पोइट्री लिखना अलग बात है, डांस करना अलग बात है, म्यूजिक बनाना अलग बात है, पेंटिंग बनाना अलग बात है। तो मॉडल ऑफ इमिटेशन क्या होता है कि, तो एरिस्टोटल बोलते हैं अगर आपको मान लो फॉर एग्जांपल इफ़ यू वांट टू पेंट समथिंग, आपको कोई पेंटिंग बनानी है तो मॉडल क्या है, आपको कोई ऑब्जेक्ट देखना पड़ेगा ना। आप कोई सीनरी देख रहे हैं, आप कोई लैंडस्केप देखा है आपने, तो उसको देख के आप बनाओगे। या आपने कोई फ्लावर देखा है, या आपने कोई बहुत ही अच्छा ह्यूमन फिगर बनाना है तो आप वो एक ह्यूमन बीइंग की आप इमेज बनाओगे। और या फिर आप पोइट्री लिखना चाहते हैं तो उसके लिए मॉडल क्या है, उसके लिए मॉडल है आपका इमोशन। अंदर से जो इमोशंस उठेंगे उसी के बेस पे आप कुछ बनाएंगे ना, तो ये तो मॉडल ऑफ इमिटेशन हो गया। सेकंड है मीन्स और मीडियम। अब मीन्स और मीडियम ऑफ इमिटेशन क्या है, हियर स्पीच, रिदम, कलर एट्सेट्रा। अब आपको कोई गाना गाना है, सिंगिंग करनी है, तो आपको बोलना पड़ेगा ना, आपको गाना गाना पड़ेगा, आपको स्पीच चाहिए। आपको डांस करना है, आपको रिदम चाहिए। आपको म्यूज़िक बनाना है, आपको म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट चाहिए। आपको पेंटिंग करनी है, आपको कलर चाहिए। तो ये क्या होते हैं, मीन्स ऑफ इमिटेशन। फिर है मैनर और मोड ऑफ इमिटेशन। इसमें मैंने लिखा है नरेटिव, इम्पर्सनेशन क्या होती है, एक्टिंग करना, और अ मिक्सचर ऑफ द टू। नरेटिव और इम्पर्सनेशन का मिक्सचर भी हो सकता है, ट्रेजेडी भी हो सकती है, कॉमेडी भी हो सकती है। मैनर और मोड क्या है कि आप किस तरीके से इमिटेशन करते हैं। आपको मान लो कोई एपिक पोइट्री लिखना है या ट्रेजेडी लिखनी है, तो आपने कोई पहले वैसा कुछ कुछ पढ़ा होगा, कुछ देखा होगा, तो तभी आपको इंस्पिरेशन मिलती है और फिर आप वो चीज़ लिखते हैं। तो आप एक्टिंग भी, हमें एक्टिंग करनी है तो हम एक्टिंग के थ्रू कर रहे हैं, या हम ट्रेजेडी लिख रहे हैं, या हम कॉमेडी लिख रहे हैं, या हम एपिक पोइट्री लिख रहे हैं। तो ये सब क्या है, मोड ऑफ इमिटेशन है। नेक्स्ट एरिस्टोटल टेल्स अस कि ट्रेजेडी क्या इमिटेट करती है। ट्रेजेडी इमिटेट करती है उन मेन को जो कि वर्चुअस हैं, नोबल हैं और बेटर हैं। ठीक है, तो ट्रेजेडी उन लोगों का इमिटेशन है, और कॉमेडी क्या करती है, उन लोगों को इमिटेट करती है जो इन्फीरियर हैं या वर्स हैं। ठीक है, और अब ये बताते हैं एरिस्टोटल एरिस्टोटल बताते हैं कि ट्रेजेडी इमिटेट उन लोगों को करती है जो कि बेटर हैं, नोबल हैं, वर्चुअस हैं, और कॉमेडी उनको इमिटेट करती है जो कि वर्स हैं, इन्फीरियर है। अब बात करते हैं कि एरिस्टोटल बताते हैं कि पोइट्री का जन्म किस कारण से हुआ। वो लाइक एट्रीब्यूट क्या करते हैं बर्थ ऑफ पोइट्री का, 2 मेन कॉजेज एट्रीब्यूट करते हैं। फर्स्ट करते हैं कि मैन इज बाय नेचर द मोस्ट इमिटेटिव ऑफ ऑल। मैन जो नेचर से ही, स्वभाव से ही इमिटेशन करने की उसके अंदर स्वभाव है। आपने देखा होगा हम लैंग्वेज कैसे सीखते हैं, हम इमिटेशन से सुन सुन के सीखते हैं, कॉपी करते हैं। तो हम हर चीज़ एक्चुअली कॉपी करके ही सीखते हैं। फिर नेक्स्ट सेकंड रीज़न दिया कि ह्यूमैनिटी इज़ गिफ्टेड विद अ सेंस ऑफ रिदम एंड मेलोडी। तो जो ह्यूमन बीइंग है, मैनकाइंड है, उसको गॉड ने गिफ्ट ही दिया है कि एक सेंस ऑफ रिदम है, एक मेलोडी है, तो वो उसको इंजॉय करता है। ह्यूमन बीइंग इमिटेशन बनाने को भी, इमिटेशन करने को भी इंजॉय करता है, और फिर बाद में उसको उसका प्लेजर लेने में भी उसको इंजॉय करता है। तो ये इसका रीज़न है।
Now, this question is really very important. Comedy was developed from the phallic songs and tragedy from Dithyramb. तो ये क्वेश्चन आ सकता है, कॉमेडी कैसे, कहाँ से डेवलप, ओरिजिन कहाँ से माना जाता है? फैलिक सॉन्ग्स क्या थे? एंशियंट रिलीजियस फेस्टिवल्स के अंदर जो फर्टिलिटी रिचुअल्स होते थे, वहाँ पे जो सॉन्ग्स गाए जाते थे उनको फैलिक सॉन्ग्स कहते थे। और एरिस्टोटल ने माना कि फैलिक सॉन्ग्स से कॉमेडी डेवलप हुई थी। एंड ट्रेजेडी फ्रॉम द डाइथायरैम। डाइथायरैम क्या है? डाइथायरैम जो गॉड ऑफ वाइन एंड फर्टिलिटी है, डायनोसियस। तो पुराने टाइम में जो डाइथायरैम थे, डायनोसियस के ऑनर में डांस किया जाता था। और एक ये हिम था, इट वॉज एन एंशियंट ग्रीक हिम sung and danced in honor of Dionysius, the god of wine and fertility। तो इसको माना है कि यहाँ से ट्रेजेडी डेवलप हुई थी और फैलिक सॉन्ग से कॉमेडी डेवलप हुई थी। दिस इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज डू लर्न इट। I think this is enough for today. So this is Aristotle part 1, and I will hopefully finish Aristotle in part 2, and then we will definitely do the MCQs. And please learn everything properly, and if you want notes you can mention in the comment box, and I have also mentioned my email ID, you can write to me. And please also share like how do you like the video, and if you want any other topic, you want me to make video on that topic, please do write in the comment section. And please like, share and subscribe the video. Thank you so much.